वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, रखते हैं जो हौसला आसमान छूने का, उनको नहीं परवाह कभी गिर जाने की. With these very lines, I welcome all the 6 contestants just present over here on the stage. With these very inspiring lines, I welcome all the participants present over here under the banner of Sanskriti Production and Abhi Tak channel, that is Genius Con Season 3 Senior Group. So along with them, I welcome all the guests as well as the parents who are present along with the contestant. ये सभी प्रतिभागी हजारों विद्यार्थियों में से होकर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए अभी तक चैनल के जीनियस 3 एंड सीजन 3 के इस मंच पर, क्वार्टर फाइनल मंच पर यहाँ पर विराजमान हैं. मैं पुनः सभी का इस मंच पर हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ. सभी ने अपनी अपनी विद्वता का परिचय देते हुए यहाँ तक पहुँचने पर अपनी सफलता पाई है. और नाउ बिफोर कमिंग टू द पॉइंट and telling you the rules and regulations of this very competition of Genius Third. So I would like to request all the participants present over here to introduce themselves before all the people. So now I request the very first contestant just to introduce herself before us. मेरा नाम इल्मा परवीन है. मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ. मैं रेमानिया गर्ल्स इंटर कॉलेज चांदपुर बिजनौर में पढ़ती हूँ. So welcome Ilma on the stage of Genius Third. So after the introduction of Ilma, she is from Ramania Inter College, Chandpur. So now it is the turn of participant number 2. मेरा उनसे निवेदन है कि वो अपना परिचय हम सबके सामने दें. कुमार है, मैं एमक्यू इंटर कॉलेज सिवारा से में पढ़ता हूँ 12वीं में. हमारे बीच में दूसरे प्रतिभागी हैं मनीष कुमार. ये एमक्यू इंटर कॉलेज सिवारा से पधारे हैं. आपका यहाँ पर इस मंच पर आभार अभिनंदन. सो वंस अगेन आई रिक्वेस्ट पार्टिसिपेंट नंबर 3. मेरा उनसे आग्रह है कि वो अपना परिचय हम सबके सामने दें. प्रतिभागी नंबर 3. My name is Saima Parveen. I am reading class first year. My school name Geeta Devi Inter College. My village name Dehlawala, Gehad. She is the third contestant, Saima. She is from Rehar. And so she is also welcome among all the other participants who are representing their own schools and their places. So now it is the turn of contestant number 4. कृपया अपना परिचय हम सबके सामने दें. प्रतिभागी नंबर 4. मेरा नाम जितेंद्र है. मैं कक्षा 10th में पढ़ता हूँ. मेरे स्कूल का नाम मुलायम सिंह यादव इंटर कॉलेज है और मेरे शहर का नाम संभल. संभल से मुलायम सिंह इंटर कॉलेज से आए हैं मिस्टर जितेंद्र, जो इस वर्ग में अपना प्रतिनिधित्व क्वार्टर फाइनल राउंड में कर रहे हैं. नाउ वंस अगेन आई रिक्वेस्ट कंटेस्टेंट 5 टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एंड his class, his place, his school and other things. My name is Abdul Rahman. I study in class 9th at Simra International Senior Secondary School. I am from Sherkot. He is representing Simra International School, Sherkot, Dhampur. So now it is the turn of the last 6 contestant to introduce himself. ये छठे प्रतिभागी हैं जो इस वर्ग में इस मंच पर अंतिम प्रतिभागी हैं. मेरा उनसे आग्रह है कि वो अपने विषय में हम सबको बताएं. My name is Vivek Kumar from Budhanpur. My school name is Park Public Senior Secondary School, Budhanpur, Bijnor. I study in class 10. Mr. Vivek, the last number 6 contestant, he is from Park Public Senior Secondary School, Budhanpur, Siwara. So once again, on this stage of Genius Con Season 3 Senior Group is there. So I welcome all you contestants here on the stage. So after having the introduction of all these participants who are just present over here on the stage of Genius Con Season 3 Senior Group, along with them I also welcome Mr. Manoj Gehlot. He is the reporter of Abhi Tak channel from Rehar, and the other distinguished guest among us is Mr. Avnish Sharma. He is the principal of Park Public Senior Secondary School, Budhanpur. So I welcome these
two guests along with us. So on this stage of Genius Con Season 3. So my dear participants, before coming to the questionnaires, so I would like to tell you all about the rules and regulations you have to follow during this round of quarter final. After proving your genius among the thousands of students who represented 83 schools all over Moradabad division, so you have come with flying colors, and then you are representing your respective schools here on the stage. आप लोगों ने पहले ही अपनी विद्वता का परिचय दिया है और उसी की कृपा से, उसी के आधार पर आप इस मंच पर विराजमान हैं। मैं इस क्वार्टर फाइनल में हमारे 6 राउंड्स हैं और हर राउंड में 6 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। उन 36 प्रतिभागियों में से 18 प्रतिभागी, प्रत्येक राउंड से 3 प्रतिभागी चुने जाएंगे जो आगे सेमीफाइनल राउंड में अपने अपने स्कूलों का प्रतिनिधित्व करेंगे। So out of these 36 contestants, only 18 contestants will be selected and would reach the semi-final round. After that semi-final round, it is our pre-final round, and only 6 out of those 18 contestants will be selected, and these 6 contestants will represent that pre-final round. And out of the 6 अंतिम फाइनल राउंड में केवल 4 प्रतिभागी, भाग्यशाली प्रतिभागी जो अपनी विद्वता को का लोहा मनवाकर हर राउंड से पास होते हुए पहुंचेंगे, वह 4 प्रतिभागी ही फाइनल राउंड में प्रवेश करेंगे और उनमें से 3 प्रतिभागी प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान अंकों के आधार पर पाने में सफल होंगे। ये आपका राउंड्स का जो प्रतिभागी हैं उनको मैंने राउंड्स के विषय में बताया। इस क्वार्टर फाइनल राउंड में 15 questions will be asked in the questionnaire and you have to answer 15 questions. So every question will have 4 options. हर प्रश्न के इंग्लिश और हिंदी में 4 ऑप्शंस होंगे। आपको उसमें से जो सबसे सही ऑप्शन है वो चुनना है और उस ऑप्शन के साथ साथ जैसे ही मैं यहाँ से आपको निर्देश दूंगा, आपका समय शुरू होता है अब और योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मेरे अब और नाउ बोलते ही आपको उतनी ही तेजी से बजर दबाना है और जो प्रतिभागी सबसे पहले बजर दबाने में सक्षम होगा उसी को उस प्रश्न का उत्तर देने का सुअवसर प्राप्त होगा। लेकिन विशेष ध्यान रहे कि मेरे निर्देश से पहले आप बजर न दबाएं, अन्यथा आपको बिना प्रश्न का उत्तर दिए ही 10 अंक खोने पड़ेंगे। हाँ, अगर आप बजर सही समय पर दबाते हैं, प्रश्न का सही उत्तर देते हैं, तो यू विल गेन 20 marks by making the correct answer to the question. But if unluckily you make the wrong answer of that question, you will have to lose 10 marks. सही उत्तर देने पर आप अर्जित करेंगे 20 अंक, लेकिन गलत उत्तर देने पर आपको खोने पड़ेंगे 10 अंक. Yes, the rules are clear before all of them. So this is and you have to be very alert. You have to focus your eyes on your monitor sets. At the same time, your finger must be alert on your buzzers. आंखें आपकी इस पर क्वेश्चनायर पर होनी चाहिए और उंगली आपकी बजर पर होनी चाहिए, ताकि आप दोनों में सही सामंजस्य मिलाकर उत्तर देने में सबसे आगे रहें. Right? So with all these things that I have made clear before you, the rules and regulations of this competition. So now let's march towards the final thing, that is the questionnaire. अब मैं आपके सामने पहला प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूँ. सभी लोग अलर्ट हों, सभी लोग अपने मॉनिटर सेट्स पर अपनी निगाहें गड़ाएं और अपनी उंगली को तत्पर रखें. लेकिन ध्यान रखें मेरे निर्देश का, जब भी मैं बोलूँगा कि योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, आपका समय शुरू होता है अब, उसके बाद ही आपको बजर दबाना है. ये मैं आपको बता चुका हूँ, आप सचेत रहें, अन्यथा आपको 10 अंक खोने पड़ेंगे अगर आप निर्देश से पहले ही बजर दबाते हैं. सो ऑल ऑफ यू, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चनर. So now we move to the questionnaire, and the very first question appears before you on your monitor screen. The very first question is, which female player won the gold medal in the 62 kg in wrestling at the 13th Southern Asian Games? I am reading the question again. Which female player won the gold medal in the 62 kg in wrestling at the 13th Southern Asian Games? And your 4 options are A. Kiran Chamoli,
B. Sakshi Malik, C. Manju Bavaria, and D. Pinky Walian. And the Hindi version of the question is 13वें दक्षिणी एशियाई खेलों में कुश्ती में 62 किलोग्राम में किस महिला खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। तो प्रश्न आपके सामने है, इसको पढ़िए और आपके 4 विकल्प हैं। A. किरण चमोली, B. साक्षी मलिक, C. मंजू बवेरिया, D. पिंकी वालियान। ये 4 ऑप्शन है, आपको जानना है कि इसमें सही ऑप्शन कौन है और सही ऑप्शन का उत्तर आपको देना है और आपका समय शुरू होता है अब। यस, इट इज कंटेस्टेंट नंबर 4 who has come forward to make the answer of this very question। ये चौथे प्रतिभागी हैं मिस्टर जितेंद्र, जिन्होंने सबसे पहले बजर दबाया है इस पहले प्रश्न का उत्तर देने के लिए। आशा करता हूं कि उनको इसका सही उत्तर पता होगा। साक्षी मलिक। मिस्टर जितेंद्र कहते हैं कि उनके अनुसार इसका जो बी ऑप्शन है साक्षी मलिक, इट इज द करेक्ट आंसर। सो अकॉर्डिंग टू हिम एंड whatever knowledge he has gained right now, so by virtue of that knowledge he is saying that B option साक्षी मलिक is the correct answer। साक्षी मलिक ने 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में कुश्ती में 62 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता। देखते हैं कि उनका ये ज्ञान कहाँ तक उनको अंक दिलाने में सफल होता है। सो वी मूव टू द आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन। यस, इट इज द वेरी करेक्ट आंसर और सही उत्तर देकर जितेंद्र कुमार 20 अंक जीतने में सफल हुए। सो जैसा कि कहावत में कहा जाता है, वेल बिगिन हाफ डन। उन्होंने पहला ही प्रश्न का सही उत्तर देकर 20 अंक कमाए हैं। आशा करते हैं कि सही प्रश्नावली में और सभी प्रतिभागी बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और सही उत्तर देकर अंक तालिका में आगे बढ़ते जाएंगे। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। प्लीज बी अलर्ट ऑन मॉनिटर सेट्स एंड द क्वेश्चन नंबर 2 अपीयर्स ऑन योर सेट। दैट इज, who among the following is the sports minister in the central government? Who among these 4 is the sports minister in the central government? And the options are A. Rajvardhan Rathore, B. Kiran Rijiju, C. Chetan Chauhan, and D. Dr. Dinesh Sharma। और इसका प्रश्न का हिंदी रूपांतर आपके सामने है। केंद्र में हमारे खेल मंत्री कौन हैं? और ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। A. राजवर्धन राठौर, B. किरण रिजिजू, C. चेतन चौहान, D. डॉक्टर दिनेश शर्मा। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन हमारे केंद्र में हमारे खेल मंत्री हैं और आपका समय शुरू होता है अब। यस, इट इज कंटेस्टेंट नंबर 1, शी इज इल्मा आफ्ताब। सो आई थिंक दैट यस, शी नोज द आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन, दैट्स व्हाई शी हैज कम फॉरवर्ड एट द फर्स्ट। उसने पहला बजर दबाया क्योंकि इल्मा ने ही सबसे पहले बजर दबाया है। तो हम चाहेंगे कि इल्मा हमें बताएं कि इन 4 ऑप्शन में उनके विचार से कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। चेतन चौहान। अकॉर्डिंग टू इल्मा, ऑप्शन सी चेतन चौहान इज द स्पोर्ट्स मिनिस्टर एट द सेंटर। कहती है कि ये तीसरा चेतन चौहान ऑप्शन ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। देखते हैं कि इल्मा का प्रयास से कहाँ तक सफल होता है। So now we move to the answer of this very question, and the correct answer is B. Kiran Rijiju। So Ilma, I'm sorry to say that your answer is not correct. So by making wrong answer, Ilma, you have lost 10 marks। कोई बात नहीं, अभी प्रश्नावली में बहुत से प्रश्न बचे हैं और अपनी बुद्धि का सही परिचय देते हुए अपने अंक तालिका में आगे बढ़ें। अभी केवल प्रश्नावली की शुरुआत हुई है, तो निराश न हो और आगे प्रयास करें। आपने इल्मा इसका उत्तर देने का प्रयास किया। क्या आपकी खेलों में रुचि है? ऐसा कुछ आप हमें बताएंगे? यस सर। किस खेल में आपकी विशेष रुचि है? सर बैडमिंटन। यस, इट्स वेरी नाइस गेम। और जैसा कहते हैं कि शिक्षा के साथ साथ अन्य क्रियाकलापों में भाग लेना चाहिए, तो उसके लिए खेल एक बहुत अच्छा माध्यम है जो हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ भी रखता है और मानसिक रूप से प्रसन्न भी रखता है। अच्छा है, आप खेलों की दुनिया में भी आगे बढ़ें, बढ़ चढ़ का नाम कमाएं शिक्षा के साथ साथ। धन्यवाद। सो विद दिस आंसर ऑफ इल्मा, वी मूव टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइफ
of famous comedian Kapil Sharma? A very interesting question it is. What is the name of the wife of famous comedian Kapil Sharma? You might have heard the name. So these four options are A. Ginni Desai, B. Ginni Malhotra, C. Ginni Chatrath, and D. Ginni Roy. These are the four options, and you have to find out which is the correct one. I am going to the Hindi version of the question, and the Hindi version is: मशहूर हास्य कलाकार कपिल शर्मा की पत्नी का क्या नाम है? आपको इन चार ऑप्शन में उनकी पत्नी का सही नाम ढूंढकर बताना है. एंड द फोर ऑप्शंस आर: A. गिन्नी देसाई, B. गिन्नी मल्होत्रा, C. गिन्नी चतरक और D. गिन्नी रॉय. इन चार में से आपको सही ऑप्शन छांट कर बताना है. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. यस, इट इज कंटेस्ट नंबर 3. सामा परवीन who has tried to make the answer of this question. सामा, आपने इसका उत्तर देने का प्रयास किया है. हम सभी जानना चाहेंगे कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जिसे आप मानती हैं कि ये कलाकार कपिल शर्मा की पत्नी का नाम है, हमें बताएं कि विच इज द करेक्ट आंसर. गिन्नी मल्होत्रा. श्यामा कहती हैं कि कपिल शर्मा जी की पत्नी का नाम है गिनी मल्होत्रा, एंड इट इज ऑप्शन बी. सो नाउ लेट्स सी वेदर शी हैज फाउंड आउट द करेक्ट आंसर. देखते हैं कि उनका प्रयास कहाँ तक सफल होता है. और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, गिन्नी चतरथ. गिन्नी चतरथ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो सामा, आई एम सॉरी टू से कि योर आंसर इज नॉट करेक्ट. आपने प्रयास तो बहुत अच्छा किया, आपका प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय है, लेकिन अफसोस कि क्योंकि उत्तर सही नहीं हो पाया, इसलिए आपको गलत उत्तर के कारण 10 अंक खोने पड़े. और इसका कपिल शर्मा की पत्नी का नाम है गिन्नी चतरथ. कपिल शर्मा के विषय में कुछ जानकारी है, आप सामा बताएं सब लोगों को. कपिल शर्मा मतलब एक शो करते हैं जो बहुत बड़े बड़े लोग जाते हैं वहाँ पे. ठीक कहा. सामा के विचार से कपिल शर्मा, जैसा उन्होंने बताया, इनका एक बहुत मशहूर शो आता है एंड इज ए कॉमेडियन. बहुत उच्च कोटि के हास्य कलाकार हैं और उनके शो में जो हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो बॉलीवुड की हों चाहे और हों, अधिकांश बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ वहाँ पर आमंत्रित होती हैं और हम लोग खूब उसका अधिक से अधिक हास्य का आनंद लेकर हमारा भरपूर मनोरंजन होता है. ठीक कहा. नेक्स्ट टाइम यू सी सामा, यू विल मेक द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चंस. प्रयास कीजिए कि अगली बार आपका उत्तर सही हो और आप 20 अंक पाने में सफल हो. अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर. एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज देयर बिफोर यू. जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन. हु वाज द चेयरमैन ऑफ इसरो ड्यूरिंग चंद्रयान 2 मिशन? इट इज द वेरी क्वेश्चन. हु वाज द चेयरमैन ऑफ इसरो ड्यूरिंग चंद्रयान 2 मिशन? एंड योर 4 ऑप्शंस आर: ए. एस किरण कुमार, बी. के राधाकृष्ण, सी. के सिवान, and D. शैलेश नायक. These are the 4 options. Before the completion of the question, अभी प्रश्न पूर्ण होने के पहले ही प्रतिभागी नंबर 2 मिस्टर मनीष ने बजर दबाया है. अब क्योंकि ये नियम विरुद्ध है, इसलिए उनको 10 अंकों से हाथ धोना पड़ता है इस बजर को दबाने के कारण. मैं प्रश्न को आगे की ओर बढ़ाता हूँ और फिर कृपया इसको ध्यान दें. Who was the chairman of ISRO during Chandrayaan 2 mission? And you have already read 4 missions. अब मैं इसके हिंदी रूपांतर की ओर बढ़ता हूँ. प्रश्न का हिंदी रूपांतर कि चंद्रयान 2 के मिशन में इसरो के अध्यक्ष कौन रहे? जब हमारा चंद्रयान 2 का अभियान हुआ तो इसरो ISRO इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शन है: A. एस किरण कुमार, B. के राधाकृष्ण, सा. के सिवान और द. शैलेश नायक. आपको बताना है कि इन 4 में से कौन इस चंद्रयान 2 के इसरो के मिशन के अध्यक्ष रहे हैं. सो आपका समय शुरू होता है अब. इट इज कंटेस्ट नंबर 2, दैट इज वंस अगेन मनीष. सो आई रिक्वेस्ट मनीष टू मेक द करेक्ट ऑप्शन दिस वेरी क्वेश्चन. आप हमें बताएं कि आपके विचार से इन 4 जो हमारे ऑप्शन हैं, विकल्प हैं, कौन सा विकल्प सही है? सर, इसमें के सिवन.
मिस्टर मनीष बोलते हैं कि K-Sivan इसरो के अध्यक्ष रहे हैं जब हमारा चंद्रयान 2 का मिशन हुआ। सो देखते हैं कि मनीष का ये प्रयास कहाँ तक उनको अंक दिलाने में सफलता देता है। सो नाउ वी मूव टू द आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर इज यस, K-Sivan इज द वेरी करेक्ट आंसर। ये हमारे चंद्रयान 2 मिशन के जब ये मिशन हुआ था तो हमारा जो इसरो है, जो हमारा अंतरिक्ष अभियान का केंद्र है, उसके अध्यक्ष मिस्टर K-Sivan रहे। सो सही उत्तर देकर मनीष आपने अर्जित किए हैं 20 अंक। इस विषय में बताएंगे क्या आपकी विज्ञान विषय में विशेष रुचि आप रखते हैं, ताकि क्योंकि आपने कुछ सही उत्तर बताया है, लगता है कि आपने उस समय जो टीवी पर बहुत दिनों तक हमारा ये मिशन दिखाई देता रहा, क्या आपने उसको देखा है क्या? यस सर, हमने ये जब तक देखा है, वैसे रात को भी मैंने देखा था जब लॉन्चिंग हो रहा था, रात में मैंने मोबाइल पे देखा, वैसे टीवी तो नहीं चलाया था। तो उसको काफ़ी प्रयास रहे हैं हमारे इसरो के चेयरमैन और उसकी टीम ने काफ़ी प्रयास किया, पर सफल ना भी होकर फिर भी सफल रहा हमारा चंद्रयान 2। वेरी गुड। मनीष ने निश्चित रूप से इस पूरे कार्यक्रम का जो टीवी पर कई दिनों तक ये हमारा, क्योंकि अपने आप में विश्व का एक प्रथम और अनोखा कार्यक्रम था जब चंद्रयान 2 के उस भाग में उस स्पेस शटल को उतारना था जिस भाग में दुनिया के अभी तक किसी भी देश ने अपना कोई भी शटल नहीं उतारा है। इसीलिए भारतवर्ष को बहुत ऊंचाइयों से देखा जा रहा था पूरी दुनिया के द्वारा इस अभियान के तहत। सो धन्यवाद मिस्टर मनीष, आपने बिल्कुल इसका सही उत्तर दिया और ये सही उत्तर देकर आप सफल हुए 20 अंक अर्जित करने में। सो नाउ वी मूव टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो प्लीज बी अलर्ट नाउ। It is the next question of this question, that is question number 5. Who is the current president of BCCI? Who is the correct president of BCCI? And the 4 options are A. Anurag Thakur, B. Saurabh Ganguly, C. Rahul Dravid, D. C.K. Khanna. These are the 4 options. आपको ध्यान से देखें, क्वेश्चन समझें और इसका प्रश्न का हिंदी रूपांतर है BCCI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। आपको इन अध्यक्ष में से 4 ऑप्शन में से सही अध्यक्ष को चुनना है और 4 ऑप्शन है आपके सामने। आ. अनुराग ठाकुर, ब. सौरभ गांगुली, सा. राहुल द्रविड़ और द. C.K. खन्ना। आपको बताना है कि BCCI के इन 4 में से अध्यक्ष पद को कौन गौरवान्वित कर रहे हैं और आपका समय शुरू होता है अब। यस, इट इज पार्टिसिपेंट नंबर 5 मिस्टर अब्दुल रहमान। He has tried to put the buzzer this time. So अब्दुल, ये आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। आप बताएं कि आपके विचार से इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बी. सौरभ गांगुली। अब्दुल रहमान बोलते हैं कि BCCI के वर्तमान अध्यक्ष उनके अनुसार ऑप्शन बी सौरभ गांगुली हैं और लगता है उनको क्रिकेट में बहुत ज़्यादा रुचि है, इसीलिए उन्होंने तुरंत बजर भी दबाया और आंसर देने में तत्परता दिखाई। देखते हैं कि उनकी तत्परता उनके लिए कहाँ तक सफलता लाती है। सो वी मूव टू द आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर इज बी सौरभ गांगुली। सो यस, मिस्टर अब्दुल रहमान इज वेरी करेक्ट टू मेक द आंसर। आप हमें बताएं कि आपने जो इतनी तेजी से इसका सही उत्तर दिया, क्या आप क्रिकेट में आपकी विशेष रुचि है ताकि जिससे कि आप इतनी जल्दी इसका सही उत्तर बताने में सफल हुए? Yes, I like very cricket. That's very good because cricket is a very popular game nowadays, not only in India but internationally. It has been applauded all the way. अच्छा है कि आप क्रिकेट में विशेष रुचि रखते हैं और क्योंकि आप खेल भी अपने आप में एक बहुत सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा भविष्य में आप अच्छे जॉब, अच्छी नौकरी पा सकते हैं। हमारी सभी की कामना है कि आप क्रिकेट से खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ें, शिक्षा के साथ साथ और भविष्य में एक आप अच्छे क्रिकेटर बने और अपने देश का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय मंच पर करें। एक बार फिर आपको बधाई। सो प्लीज कम टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम पुटिंग बिफोर यू एंड द क्वेश्चन नंबर 6 इज which actress was given the National Film Festival Award in 2018? Just go through the question once again. Which actress was given the National Film Festival Award in
2018. And your four options are A. Madhuri Dixit, B. Deepika Padukone, C. Katrina Kaif and D. करीना कपूर. These are the four options. और इस प्रश्न का हिंदी रूपांतर मैं आपके सामने रखता हूँ. प्रश्न का हिंदी रूपांतर है सन 2018 में नेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता. और इन चार ऑप्शंस में आ. माधुरी दीक्षित, बा. दीपिका पादुकोण, सा. कटरीना कैफ, द. करीना कपूर. इन चार अभिनेत्रियों में से आपको सही अभिनेत्री को छांट कर बताना है जिसने सन 2018 में नेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जीता है. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. यस, इट इज contestant number 2, that is Manish. Once again he has come to play forward just to make the answer to the question. जी मनीष, आप बताने का प्रयास करें कि आपके विचार से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है. सर दीपिका पादुकोण. मनीष कहते हैं कि सन 2018 में नेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जीतने वाली अभिनेत्री का नाम है दीपिका पादुकोण. देखते हैं कि मनीष का ये फिल्मी दुनिया का ज्ञान उनको कहाँ तक सहायता करता है अंक अर्जित करने में. सो वी मूव टू द आंसर दिस वेरी क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर इज यस. वंस अगेन मनीष हैज मेड द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन. दीपिका पादुकोण इज द करेक्ट आंसर. उन्होंने सन 2018 का ये पदक जीता और सही उत्तर देकर मनीष सफल हुए 20 अंक अर्जित करने में. बधाई मनीष आपको. और इसी प्रकार से आप सभी प्रतिभागी अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए अंकों को अर्जित करने की तालिका में आगे से आगे बढ़ें. क्या मनीष इस विषय में बताएंगे कि जो आपने इतना सही उत्तर दिया, तो क्योंकि ये उत्तर वही दे सकता है जिसको बॉलीवुड का फिल्म दुनिया का ज्ञान भी हो, इस विषय में आप कुछ अपने विचार रखें. सर जब ये अवार्ड चल रहा था, जब हम टीवी पर देखा था और दीपिका पादुकोण को और ये अवार्ड. जी लगता है मनीष आप न्यूज़ में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि आपने पहले प्रश्न के उत्तर में भी बताया था कि जब इसरो का वो चंद्रयान 2 मिशन चल रहा था तब भी आप उसको वॉच करते थे. सर न्यूज़ ज़्यादा देखते हैं. ये बहुत अच्छा है. समाचार पत्र और जो टीवी न्यूज़ हैं ये हमारे ज्ञानवर्धन का सबसे सशक्त माध्यम है. इसलिए रोज़ आपको निश्चित रूप से समाचार पत्र पढ़ना चाहिए और समय मिले तो टीवी पर न्यूज़ देखना चाहिए. उससे आपका एक तो इंग्लिश का ज्ञानवर्धन भी होता है जब आप इंग्लिश न्यूज़ सुनते हैं, और साथ साथ आपको पता चलता रहता है कि आपके घर के बाहर जो इतनी बड़ी दुनिया है उसमें क्या हो रहा है और क्या चल रहा है. सो थैंक यू मनीष. सो नाउ विथ दिस वेरी आंसर ऑफ द क्वेश्चन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा. विच टीम वन the 2019 Cricket World Cup? Also a very interesting game and interesting question also. Which team won the 2019 Cricket World Cup? And the four options are A. New Zealand, B. England, C. India and D. Australia. These are the four options. A. New Zealand, B. England, C. India and D. Australia. इसका हिंदी रूपांतर है 2019 का क्रिकेट विश्व कप किस टीम ने जीता. आपके चार ऑप्शन आपके सामने हैं. न्यूजीलैंड, बा इंग्लैंड, सा भारत और डी ऑस्ट्रेलिया. आपको बताना है कि ये क्रिकेट का विश्व कप इन चार देशों में किस टीम ने जीता. और आपका समय शुरू होता है अब. वंस अगेन इट इज कंटेस्टेंट नंबर 2 मिस्टर मनीष. उन्होंने फिर बजर दबाने में तत्परता दिखाई और क्योंकि बड़ा विश्वास दिखाया उन्होंने बजर दबाने में, तो लगता है कि उनको पूर्ण विश्वास है कि इसका वो सही उत्तर हम सबके सामने रख पाएंगे. मनीष आप बताएं कि विच ऑप्शन अकॉर्डिंग टू यू इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन. सर इंग्लैंड, बी. मनीष कहते हैं कि बी ऑप्शन, इंग्लैंड की टीम ने 2019 का क्रिकेट विश्व कप जीता. सो देखते हैं कि मनीष क्रिकेट में जो इनकी रुचि है उनको कहाँ तक सफलता देने में सफल होती है. सो इसका सही उत्तर है yes. Once again he has made the correct answer consequently. और इंग्लैंड की टीम ने
2019 का क्रिकेट का विश्व कप जीता। मनीष, क्रिकेट कितना खेलते हैं और कैसे खेलते हैं? सर वैसे खेल तो नहीं है, पर देखते ज़्यादा हैं क्रिकेट, क्योंकि जितना जब भी क्रिकेट होता है या इंडिया का हो या किसी वर्ल्ड का, ज़्यादातर वही देखते हैं। यस, जैसे एक महान लेखक फ्रांसिस बेकन ने बोला है कि समटाइम्स एन ऑन लुकर सीज मच मोर देन द गेम स्टक। ऐसा नहीं कि खेल कर ही उसका ज्ञान होता है, ऐसा मनीष बता रहे हैं कि उसको इनको इंडिया वर्सेस और दूसरे देशों से जब भारत का मैच होता है अपने देश का, उनको देखने में इनकी बहुत रुचि है और उसी के द्वारा उन्होंने इस ज्ञान को अर्जित किया है और उसी बलबूते पर ये सही उत्तर देकर 20 अंक अर्जित करने में सफल हुए हैं। तो मनीष, एक बार आपको फिर सभी ओर से बताएंगे। प्रश्नावली के अगले चरण की ओर बढ़ते हैं और सभी लोग प्रश्न पर अपना ध्यान दें। अगला 8वां प्रश्न आपके समक्ष है। विच चेस प्लेयर ऑफ इंडिया हैज बीन अ 5-time वर्ल्ड चैंपियन? विच चेस प्लेयर ऑफ इंडिया हैज बीन अ 5-time वर्ल्ड चैंपियन? एंड द 4 ऑप्शंस आर A. विश्वनाथन आनंद, B. आर्यन चोपड़ा, C. चंदन काटना, D. अभिजीत गुप्ता। दीज आर द 4 ऑप्शंस। और इस प्रश्न का जो हिंदी रूपांतर है उसको अपने मॉनिटर सेट्स पर देखें। प्रश्न है, भारत का कौन सा शतरंज का खिलाड़ी 5 बार विश्व चैंपियन रह चुका है? 5 बार विश्व चैंपियन रह चुका है। और आपके सामने जो इसके 4 विकल्प हैं, आ. विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथन आनंद, बा. आर्यन चोपड़ा, सा. चंदन कटना, ड. अभिजीत गुप्ता। इन 4 में से आपको बताना है कि कौन सा खिलाड़ी भारतवर्ष का 5 बार शतरंज का विश्व चैंपियन रह चुका है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो बजर दबाने की श्रृंखला में जो हमारे दूसरे प्रतिभागी हैं मिस्टर मनीष, वो लगातार आगे चल रहे हैं और केवल बजर ही दबाना नहीं बल्कि सही उत्तर देने की श्रेणी में भी वो तेजी से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इस बार फिर वह बजर दबाने में सबसे आगे सफल हुए और जैसा देखा जा रहा है कि उनके विश्वास के द्वारा, वो विश्वास बहुत अपने अंदर रखते हुए प्रश्नों का सही उत्तर देने में सफलता पा रहे हैं। तो मनीष, हम जानना चाहेंगे कि इस बार आपके विचार से इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? सर ए. विश्वनाथन आनंद। मनीष कहते हैं कि विश्वनाथन आनंद भारतवर्ष के वो खिलाड़ी हैं जो 5 बार शतरंज खेल में विश्व चैंपियन रह चुके हैं। देखते हैं कि मनीष जैसे और प्रश्नों का उत्तर सफलतापूर्वक दे रहे हैं, क्या इस प्रश्न में भी सफलतापूर्वक वो अंक अर्जित करेंगे? सो नाउ वी मूव टू द करेक्ट आंसर द क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर इज यस, इट इज ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथन आनंद। ये भारत के एक अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के खिलाड़ी हैं और शतरंज खेल में इन्होंने अनेकों पुरस्कार पाए हैं विश्व स्तर पर और भारत का इन्होंने बहुत अधिक नाम अर्जित किया है। तो ये सही उत्तर देकर मिस्टर मनीष एक बार फिर 20 अंक पाने में सफल हुए हैं और आप सभी प्रतिभागी इनसे प्रेरणा लें, साथ साथ बजर दबाने में भी अपनी तत्परता दिखाएं ताकि आपको भी अंक अर्जित करने में सफलता मिले। ये हमारी इस प्रश्नावली का पहला चरण है और आफ्टर पुटिंग 8 questions before you and after finding the answers of these 8 questions, we'll go for a very small break, and after the break we'll come just to tell you what are the marks that you have gained or lost। ये सभी प्रतिभागी इन्होंने क्या अंक अर्जित किए हैं इसके विषय में आपको बताएंगे, आपसे चर्चा करेंगे और चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर। आप कहीं न जाएं, यहीं रहें। धन्यवाद। So after the break, once again we are back and I welcome you all the participants here on the stage of Genius Con Season 3. So in the very first half of the questionnaire, after 8 questions, you contestant would be very much anxious to know आपने कितने अंक अर्जित किए
जो हमारी पहली प्रतिभागी हैं इल्मा मलिक, उन्होंने एक गलत उत्तर देने के कारण 10 अंक खोए। शी इज़ -10 एट प्रेजेंट। दूसरे प्रतिभागी हैं मिस्टर मनीष, इन्होंने क्योंकि कई प्रश्नों का सही उत्तर दिया, हालांकि गलत बजर दबाने पर उन्होंने अंक भी खोए, लेकिन उनकी अंक तालिका है 70 मार्क्स। सो ही इज एट द वेरी हाईएस्ट स्कोर, मिस्टर मनीष। एंड द थर्ड कंटेस्टेंट that is Saima, but she has also lost 10 marks. She is -10 at present. The fourth contestant, Mr. Jitendra, he has earned 20 marks after making the correct answer. Mr. Jitendra has earned 20 marks. उनके हैं 20 अंक. Now the fifth contestant, that is Mr. Abdul Rahman, and he has also earned 20 points. His वो अंक तालिका में 20 अंक अर्जित कर चुके हैं और बधाई एक बार। अंतिम प्रतिभागी मिस्टर विवेक हैं, उन्होंने अभी तक अंक पाने में सफलता प्राप्त नहीं की है, इसलिए उनकी अंक तालिका में उनका अंक 0 है। सो इन द वेरी सेकेंड हाफ ऑफ दिस वेरी क्वेश्चनायर, आई जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट वंस अगेन। सभी प्रतिभागी इन 7 शेष प्रश्नों का उत्तर बढ़ चढ़ कर दें, बजर दबाने में तत्परता दिखाएं, सही उत्तर देने में भी तत्परता दिखाएं और अभी अंक तालिका में और अधिक अंक अर्जित करने का प्रयास करें। और आपने जैसे सुना होगा, देखा होगा कि इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू पार्टिसिपेट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। जीतना और हारना उसका एक भाग है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है खेलों में भाग लेना। तो मेरी आप सभी से यही इच्छा है कि आप उत्तर देने की अवस्था में बढ़ चढ़ कर भाग लें, ताकि आप अंक अर्जित करने की तालिका में आगे बढ़ें। सो विद दीज वर्ड्स आई जस्ट मूव टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज क्वेश्चन नंबर 9। नाउ प्लीज बी अलर्ट। नेम ऑफ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। जस्ट प्लीज पे अटेंशन टू द क्वेश्चन। नेम ऑफ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया एंड द 4 ऑप्शंस आर: ए नालंदा यूनिवर्सिटी, बी तक्षशिला यूनिवर्सिटी, सी जवाहर यूनिवर्सिटी, डी द्रोणाचार्य यूनिवर्सिटी। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका हिंदी वर्जन है: भारत के प्रथम विश्वविद्यालय का क्या नाम है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। भारत के प्रथम विश्वविद्यालय का क्या नाम है? और आपके सामने हिंदी के 4 विकल्प हैं: अ नालंदा विश्वविद्यालय, ब तक्षशिला विश्वविद्यालय, स जवाहर विश्वविद्यालय, द द्रोणाचार्य विश्वविद्यालय। ये 4 विश्वविद्यालय हैं, लेकिन आपको बताना है इसमें सबसे प्रथम विश्वविद्यालय का क्या नाम है। और आपका समय शुरू होता है अब। ये प्रतिभागी नंबर 4 जिन्होंने जितेंद्र ने बजर दबाने का प्रयास किया है, और क्योंकि बहुत विश्वास के साथ हमने बजर दबाया है, तो हमें विश्वास है कि उनका ये विश्वास उनको अंक अर्जित करने में सफलता दिलाएगा। तो जितेंद्र, आप हम सबको बताएं कि आपके विचार से इन 4 में से भारत का सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तक्षशिला विश्वविद्यालय। जितेंद्र के अनुसार भारत का जो सबसे प्रथम विश्वविद्यालय रहा है उसका नाम था तक्षशिला विश्वविद्यालय। इनका अकॉर्डिंग टू हिम ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन। सो लेट्स सी हाउ फार ही इज करेक्ट टू मेक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके सही उत्तर की ओर बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर है अ नालंदा विश्वविद्यालय। ये बहुत अपने आप में प्राचीन भारतवर्ष का एक बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय रहा है, और ये सर्वप्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव इसको मिला है। सो सॉरी टू से मिस्टर जितेंद्र, यू हैव मेड अ रॉन्ग आंसर द क्वेश्चन। और क्योंकि आपका प्रयास सफल नहीं हुआ, आपने प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया, इसके कारण आपको इस 10 अंकों से हाथ धोना पड़ा। आपके गलत उत्तर के कारण यू हैव गॉट -10 मार्क्स। कोई बात नहीं, जैसे मैंने भी आपको कहा, प्रयास करना पहली आवश्यकता है। आपने प्रयास किया, आगे आप अपने प्रयास में सफल होंगे, ऐसी मेरी कामना है। और इसके साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्नावली का अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 10। नेम ऑफ फर्स्ट इंडियन मिसाइल। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। नेम ऑफ फर्स्ट इंडियन मिसाइल एंड द 4 ऑप्शंस आर: अ ए पृथ्वी, बी सुखोई, सी HAL तेजस, एंड डी स्पेस कैप। सो
वी हैव टू मूव द हिंदी वर्जन ऑफ द क्वेश्चन, और इसका हिंदी रूपांतर है प्रथम भारतीय मिसाइल का क्या नाम है। आपको बताना है कि जो मिसाइल भारत की बनी, लेकिन सबसे पहली मिसाइल, उसका क्या नाम है। इसके 4 विकल्प हिंदी में आपके समक्ष हैं। आ पृथ्वी, बा सुखोई, सा HAL तेजस, और डा सेप कैट। ये 4 विकल्प आपके सामने, पृथ्वी, सुखोई, HAL तेजस और दा है सेप कैट। आपको बताना है कि इन 4 में से कौन सी भारत की प्रथम मिसाइल थी, और आपका समय शुरू होता है अब। इट इज पार्टिसिपेंट नंबर 2। वंस अगेन दिस मनीष हैज कम फॉरवर्ड टू मेक द बजर। मनीष ने फिर बजर दबाने में तत्परता दिखाई। मनीष, सभी लोग जानना चाहेंगे कि आपके विचार से जो प्रथम भारतीय मिसाइल थी, इन 4 में से कौन सी मिसाइल थी जिसको आप सही मानते हैं। सर पृथ्वी। मनीष कहते हैं कि इसका जो विकल्प है इस प्रश्न का आ, ये अपने आप में सबसे सही विकल्प है। नाउ लेट्स सी हाउ फार इज करेक्ट टू मेक द आंसर ए पृथ्वी। सो वी मूव टू द आंसर दिस वेरी क्वेश्चन। यस, once again his knowledge comes very true to make him achieve 20 marks by making the correct answer. उनके विचार से पृथ्वी बिल्कुल सही उत्तर निकला, और सही उत्तर के कारण उन्होंने 20 अंक अर्जित करने में सफलता पाई। ये मिसाइल्स क्योंकि अपने आप में एक बड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी विषय है, अपने आप में एक बड़ा चुनिंदा विषय है जो थोड़ा सा लीक से हटकर है। तो मनीष, आप बताएंगे कि इस विषय में आपने कहाँ से ज्ञान अर्जित किया। सर वैसे मैं आर्ट साइड का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने मिलिट्री साइंस ले रखी है वैसे, क्योंकि NCC में भी हूँ मैं, तो इसलिए मैंने उसमें पढ़ा है, तो इसलिए मैंने पृथ्वी के बारे में। बहुत अच्छा। एक आर्ट्स फैकल्टी का स्टूडेंट होने के बावजूद मनीष को साइंस में मनीष काफ़ी दखल रखते हैं, और पीछे भी उन्होंने कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनका सीधा सीधा संबंध विज्ञान से था, उनके सही उत्तर देने में सफलता पाई। ये जैसे आपने जगह जगह लिखा हुआ पढ़ा होगा, खासकर स्कूल्स में लिखा रहता है, नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है। आज ज्ञान की शक्ति आपके सामने सभी प्रतिभागी बढ़ चढ़ कर दिखा रहे हैं, और विशेषकर मनीष, इन्होंने कई बार अपनी इस ज्ञान की शक्ति का परिचय हम सबके सामने दिया, और उसी की बलबूते पर ये अंक तालिका में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। सो मनीष, बधाई एक बार आपको फिर सही उत्तर देने पर। बढ़ते हैं प्रश्न के अगले अंक चरण पर। सो द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर मॉनिटर सेट्स इज, इट इज द 11th क्वेश्चन। नेम ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू गेट परमवीर चक्र। जस्ट मेक द क्वेश्चन वंस अगेन। Name of the first person to get Paramveer Chakra, and the 4 options are A. Major Somnath Sharma, B. Major Shaitan Singh, C. Major Rajen Singh, D. Major Suresh Ranawat. You have to find out कि who among these 4 got first, who was the first person to get Paramveer Chakra, and the Hindi version of the question is परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का क्या नाम है। आपको देखना है कि इन 4 विकल्पों में से कौन सा वो नाम है जो परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रहे हैं, और इसके 4 विकल्प हैं। आ. मेजर सोमनाथ शर्मा, बा. मेजर शैतान सिंह, सा. मेजर राजेंद्र सिंह, डा. मेजर सुरेश रणवत। ये 4 महान सेनानी हुए हैं भारतवर्ष के, और आपको बताना है कि इन 4 विकल्पों में सही विकल्प कौन सा है, और आपका समय शुरू होता है अब। फिर मंच पर आगे आते हैं मिस्टर मनीष, हमारे दूसरे नंबर के प्रतिभागी, जिन्होंने इसका उत्तर देने का प्रयास किया, सबसे पहले बजर दबाया, और इसीलिए उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो इस प्रश्न का उत्तर दें। 4 ऑप्शन है, मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर शैतान सिंह, मेजर राजेंद्र सिंह और मेजर सुरेश रणवत। तो मनीष, आप बताएं कि आपके विचार से इसमें कौन सा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेजर सोमनाथ शर्मा। मनीष जी कहते हैं कि मेजर सोमनाथ शर्मा वो प्रथम भारतीय थे जिन्होंने परमवीर चक्र ये सब
आर्मी के सब मेडल्स हैं, ये आर्मी के पुरस्कार हैं। परमवीर चक्र अपने आप में बहुत उच्च कोटि का पुरस्कार है। वो कहते हैं कि मेजर सोमनाथ शर्मा प्रथम भारतीय थे जिन्होंने परमवीर चक्र प्राप्त किया। देखते हैं कि वह इस प्रश्न का उत्तर देने में कहाँ तक सफल होते हैं। बढ़ते हैं इस प्रश्न के उत्तर की ओर। यस, वंस अगेन ही इज वेरी करेक्ट टू मेक द करेक्ट आंसर। उनके विचार से जिन्होंने पहला ऑप्शन छांटा वो निश्चित रूप से इस प्रश्नवाली का, इस प्रश्न का सही उत्तर था। हमारे बीच में ये 6 प्रतिभागी इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं प्रतिभागी नंबर 6 की ओर बढ़ता हूँ। मिस्टर विवेक हमारे बीच में हैं। विवेक, मैं जानना चाहूँगा कि आप किस विषय में एक विशेष रुचि रखते हैं जिसमें आप भविष्य में आगे बढ़ना चाहते हैं? कोई शिक्षा से संबंधित विषय हो या इससे हटकर कोई दूसरे क्रियाकलाप हों जो आपके जीवन में महत्व रखते हों, इस विषय में मैं आपके विचार जानना चाहूँगा। सर मैं अपना बोलना। अच्छा, मिस्टर विवेक बोल रहे हैं कि जितने भी विषय उनके जिसमें वो अध्ययनरत हैं उसमें मैथ्स में उनकी विशेष रुचि है। इसके लिए कोई विवेक आप विशेष कारण बताना चाहेंगे कि आपने अन्य विषयों में से केवल इसमें ही क्यों अपनी रुचि रखी? मैथ बहुत अच्छा लगता है, इंटरेस्ट है। अच्छा, आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है, ये बहुत अच्छी बात है। और जैसा सुनने में और पढ़ने में आता है कि जो व्यक्ति मैथ्स में तेज़ होता है वो अन्य विषयों में भी तेज़ होता है, ऐसा मैथ्स की रुचि और विषयों के बारे में कहती है। और मैथ्स के बारे में हमने पढ़ा है कि अगर किसी विद्यार्थी का ध्यान भटकता हो पढ़ाई में, जैसे आप पढ़ने बैठते हैं कि साहब पढ़ने बैठता हूँ और मन उचाट हो जाता है, तो उसके लिए बताया गया है कि इसका एकमात्र इलाज है कि वो मैथमेटिक्स पढ़े। और मैथमेटिक्स को ध्यान केंद्रित करने की कला सिखाती है। ये मैथ्स का विशेष गुण है कि इट टीचेस अस हाउ टू कंसंट्रेट, हमें ध्यान कैसे केंद्रित करते हैं। बहुत अच्छा आपके इस विषय में जानकारी हुई। आपका अपने विषय में जानकारी देने के बधाई। ये जानकारी के बाद बढ़ते हैं इस प्रश्नावली के अगले प्रश्न की ओर। सभी लोग बजर दबाने में और प्रश्न का सही उत्तर देने में बढ़ चढ़ कर भाग लें। देखें अगला प्रश्न अपने मॉनिटर सेट्स पर, और आपके सामने अगला प्रश्न यह है। इट इज क्वेश्चन नंबर 12। यू आर हैविंग क्लिपिंग ऑन योर मॉनिटर सेट्स। आपके सामने एक छोटा सा चित्र है। प्रश्न है, द फोक डांस शोन इन द पिक्चर is related to which state? It is a question. The folk dance shown in the picture is related to which state? आपको इस पिक्चर पर ध्यान देना है। The options are the first option A राजस्थान, B हरियाणा, C महाराष्ट्र and D गुजरात. These are the 4 options and you have to find out the correct option. और इसका प्रश्न का हिंदी रूपांतर है। ये जो चित्र आप इसमें अपने मॉनिटर सेट्स पर देख रहे हैं, आपको बताना है कि ये फोक डांस, लोक नृत्य इस किस प्रदेश से संबंधित है। आ राजस्थान, बी हरियाणा, सी महाराष्ट्र और डी गुजरात। आप इसमें से सही ऑप्शन छांटें और आपका समय शुरू होता है अब। ये कंटेस्टेंट नंबर 1 मिस इल्मा इज देयर। इल्मा ने बजर को दबाने का प्रयास किया, तत्परता दिखाई। इल्मा ये जानना चाहेंगे कि इन 4 विकल्प में आप किस विकल्प को इस प्रश्न का सही उत्तर मानती हैं? डी गुजरात। इल्मा कहती है कि जो क्लिपिंग, जो चित्र यहाँ पर दिया हुआ है वह लोक नृत्य गुजरात प्रांत से संबंधित है। अब क्योंकि ये महिलाओं का विषय ज़्यादा है, देखते हैं कि इल्मा ने सही उत्तर देने में कैसा प्रयास किया, उनका प्रयास कहाँ तक सफल होता है। सो नाउ वी मूव टू द करेक्ट आंसर द क्वेश्चन। इल्मा कहती हैं कि द ऑप्शन गुजरात सही ऑप्शन है। इल्मा, द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सी, दैट इज महाराष्ट्र। ये लोक नृत्य महाराष्ट्र प्रांत से संबंधित है। तो इल्मा, आप प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पाई, लेकिन आपने प्रयास किया। ये आपका प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय माना जाएगा। और क्योंकि आपने सही उत्तर नहीं दे पाया, इसलिए आपने खोए हैं 10 अंक। कोई बात नहीं, अभी कुछ प्रश्न शेष हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सो द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन योर स्क्रीन्स।
is question number 13. And the question is, name of the first woman of India to climb the Mount Everest. You have to find out the name of that particular woman who climbed up Mount Everest. And the four options are A. Bachendri Pal, B. Sushma Swaraj, C. Indira Gandhi, D. Sarojini Naidu. These are the four options before you, and we move to the correct option. हिंदी वर्जन ऑफ दिस क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला का क्या नाम है? आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, आ बचेंद्री पाल, बा सुषमा स्वराज, सा इंदिरा गांधी और दा सरोजिनी नायडू। आपको बताना है कि कौन सी प्रथम भारतीय महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता पाई, और चार ऑप्शन में आपको सही ऑप्शन छांटना है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। द बजर दैट वाज मेड बाय कंटेस्टेंट नंबर 4 जितेंद्र, क्योंकि आपने बजर सबसे पहले दबाया, लगता है कि आपको पूर्ण विश्वास है इस प्रश्न का सही उत्तर जानने में। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके विचार से इन चार ऑप्शन में, चार विकल्प में कौन सा विकल्प सही है? बचेंद्र पाल। According to Mr. Jitendra, the first option A, and that is Bachendri Pal. He feels that it is the very correct answer to the question. वो इसका सही उत्तर बताते हैं कि बचेंद्री पाल वो पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने इस पर्वत पर, एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने में सफलता पाई। देखते हैं कि मिस्टर जितेंद्र अपने प्रयास में कहाँ तक सफल होते हैं। जस्ट मूव टू द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। यस, द करेक्ट आंसर इज ए, बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल ये प्रथम भारतीय महिला हैं जिन्होंने इस विश्व के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचने में सफलता पाई। ये प्रथम भारतीय महिला हैं और सही उत्तर देकर हमारे इस प्रतिभागी ने अर्जित किए हैं 20 अंक। इस विषय में जितेंद्र थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि आपने इसके बारे में जो आपको ज्ञान अर्जित हुआ, ये कहाँ से आपने इस ज्ञान को पाया? सर, हमारे कॉलेज में वो ऐसे फॉर्म आते रहते हैं तो हम उनमें भाग लेते हैं, और उनमें ऑप्शन टाइप के आते हैं, तो इसीलिए हमने एक बार ये लगाया भी था, इस पर सही आंसर लगाया था। जैसा प्रतिभागी जितेंद्र ने कहा कि वो भिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहते हैं और इसी कारण से उनको इस प्रश्न के सही उत्तर का ज्ञान हुआ, तो बहुत अच्छी बात है जितेंद्र। प्रतिभागियों में आपने आगे बढ़ चढ़कर इस प्रश्न का उत्तर दिया और सही उत्तर देकर आपने कमाए हैं 20 अंक। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। सो नाउ वी आर मूविंग टू द फैक्ट एंड ऑफ दिस क्वेश्चनायर। अंतिम प्रश्नों की, इस प्रश्नावली के अंतिम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न पर आप विशेष ध्यान दें क्योंकि ये आपके अंतिम प्रश्नों में से एक प्रश्न है। एंड द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नाउ? How many articles are in Constitution of India now? And the four options are A 440, B 441, C 448, and D 443. These are the four options, and you have to find out the correct option out of these four. और इसका प्रश्न का हिंदी रूपांतर है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? प्रश्न पर ध्यान दें, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? और इसके चार विकल्प हैं, अ 440, ब 441, सा 448 और द 443। आपको बताना है कि भारतीय संविधान में इनमें से कितने अनुच्छेद हैं और आपका समय शुरू होता है अब। सो इट इज पार्टिसिपेंट नंबर 5 मिस्टर अब्दुल रहमान हु मेड द बजर फर्स्ट दिस टाइम। तो अब्दुल रहमान, आप बताएं कि इन चार विकल्पों में से आप किस विकल्प को सही मानते हैं और आपके अनुसार भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? C 448। अब्दुल रहमान बोलते हैं कि इस प्रश्न का सही विकल्प है सा 448। अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर 448 आर्टिकल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत चुनावा प्रश्न है और उन्होंने इसका उत्तर दिया। इसके लिए देखते हैं कि इनका क्या अंक स्कोर होता है इसके उत्तर के अनुसार।
यस, आंसर सी इज अ वेरी करेक्ट आंसर। और मैं निश्चित रूप से इनको विशेष रूप से बधाई दूंगा कि एक सामान्य प्रश्न नहीं था, ये एक अपने आप में कठिन और एक सेलेक्टेड प्रश्न है और इन्होंने इसका सही उत्तर दिया। इसके लिए एक बार फिर ये बधाई के पात्र हैं। कैसे जाना अब्दुल रहमान आपने कि इसका सही विकल्प 448 अनुच्छेद है? कहाँ पढ़ा आपने इस विषय में? I read this question in my SST notebook. It's very good because the question is related to political science and civics also. Yes. So that is आपने अपने उसमें किसी लेसन में इसको पढ़ा क्योंकि ये उसी का विषय है और उसको पढ़ने के बाद रिटेन किया। पढ़ना पहली आवश्यकता है, उसको गुमना, उसको लर्न करना उससे अंतिम आवश्यकता है जो आपने की और उसके कारण आप सफल हुए और आपने अर्जित किए हैं सही उत्तर देकर 20 अंक। धन्यवाद। सो नाउ इट इज द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चनर। इस प्रश्नावली का ये अंतिम प्रश्न है। तो मेरा सभी 6 प्रतिभागियों से विनम्र आग्रह है कि सब अपने बुद्धि का पूरा जोर लगाएं और इस प्रश्न का उत्तर देने में बजर दबाने तत्परता दिखाएं और प्रश्न का सही उत्तर दें क्योंकि हमारी प्रश्नावली का सही उत्तर से आरंभ हुआ। सबसे पहले प्रश्न का सही उत्तर दिया गया तो चाहेंगे कि अंतिम प्रश्न का उत्तर भी हमको सही मिले। सो वी मूव टू द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चनर एंड द क्वेश्चन इज द वेरी लास्ट क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द correctly spelled words and the options are argument, argument, argument and argument. 4 spellings are there. You have to find out the correct spelling of argument. Now ARGUMENT, ARGUEMENT, ARGUMENT and ARGUUMENT. 4 spellings are there. One is correct while 3 spellings are wrong. We move to the Hindi version of this question if it is there. These are the 4 options. अच्छा है कि इसके केवल इंग्लिश ऑप्शन पर ही सब लोग ध्यान दें क्योंकि इंग्लिश वर्ड है। इसमें 4 ऑप्शन हैं, फिर ध्यान दें सब। A ARGUMANT, B ARGUEMENT, C ARGUMENT, D ARGUUMENT। बहुत आसान शब्द है, सभी ने कई बार उसको लिखा पढ़ा होगा और इस प्रश्न का सही उत्तर आपको छांटना है और आपका समय शुरू होता है अब। अगेन मनीष इज देयर, कंटेस्ट नंबर 2। वंस अगेन ही हैज प्लेड फॉरवर्ड और उन्होंने बजर दबाने में सबसे पहले सफलता पाई। देखते हैं कि साइंस के ज्ञान के साथ साथ मनीष का इंग्लिश में कितना दखल है, उनको कितना कॉन्फिडेंस है इंग्लिश भाषा पर। मनीष बताएं कि आपके अनुसार इन 4 स्पेलिंग्स में कौन सी स्पेलिंग आर्गुमेंट की करेक्ट है? सर ए ARGUMENT। मनीष बोलते हैं कि द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड इज ARGUMANT। सो नाउ लेट्स सी हाउ फार इज नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज करेक्ट। देखते हैं कि इसका ये अंग्रेजी का ज्ञान कहाँ तक सही है। बढ़ते हैं इस प्रश्न के उत्तर की ओर। हिंदी वर्जन देयर एंड देन इट इज the correct answer of the question is C. It is the correct answer, ARGUMENT. Very simple word it is, and the correct spelling is ARGUMENT. So as he has made the option A as his correct answer, Manish, sorry to say, कोई बात नहीं, आपने पीछे बहुत प्रश्नों के सही उत्तर दिए, उससे आप अंक अर्जित करने में सफल हुए। ये इसमें आपको निराशा हाथ लगी क्योंकि आपका इसका उत्तर सही नहीं हुआ, इसलिए आपने गलत उत्तर देने के कारण खोए हैं 10 अंक। इस अंतिम प्रश्न के साथ ये प्रश्नावली एंड दिस वेरी लास्ट ग्रुप ऑफ क्वार्टर फाइनल दैट कंसिस्ट ऑफ 6 पार्टिसिपेंट्स ओवर हियर, सो इट हैज आल्सो कम टू एन एंड। So after making this complete questionnaire, once again I thank all the participants to come forward to make the answer of these questions. सबने प्रश्नावली के उत्तर देने में बढ़ चढ़ कर भाग लिया, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। वह भी जो अंक अर्जित करने में सफल हुए और वह भी जो अंक अर्जित करने में सफल नहीं हुए लेकिन अपनी विद्वता का परिचय देते हुए इस क्वार्टर फाइनल के चरण तक पहुँचने में सफल हुए। भविष्य में वह और अधिक तेजी के साथ प्रतिभागी बनकर आगे बढ़ेंगे।
नाउ इन द एंड, अब अंत में सभी जानने के लिए उत्सुक होंगे कि उन्होंने अंकों की श्रेणी में कितने अंक अर्जित किए और कौन अंक पाकर वे 3 प्रतिभागी अगले चरण सेमीफाइनल में पहुंचने में सफल हुए, और कौन वे प्रतिभागी हैं जो उस अंक की दौड़ में पिछड़ गए और जो अगले चरण में स्थान पाने में सफल नहीं हो पाए। सो आफ्टर दिस ब्रेक विल बी वंस अगेन हेयर। एक छोटे से ब्रेक के लिए जाते हैं, आप कहीं न जाएं। धन्यवाद। संस्कृति प्रोडक्शन के बैनर के अंतर्गत अभी तक चैनल का ये प्रयास जीनियस कॉन सीजन 3 सीनियर वर्ग में आज सभी इन 6 प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी ने अपनी बुद्धिमानी के अनुसार जो भी उत्तर उनको सर्वोत्तम लगे उन्होंने प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया, और अंत में सभी प्रश्नावलियों का उत्तर देने के पश्चात मैं अब आपके सामने आता हूं उन अंकों के साथ इन 6 प्रतिभागियों में से किसने कितने अंक पाए। प्रतिभागी नंबर 1 इल्मा आफ्ताब, ये 20 अंक पाने में सफल हुई। प्रतिभागी नंबर 3 सामा परवीन, इन्होंने गलत उत्तर देने के कारण 10 अंक खोए। और इसी क्रम में तीसरे नंबर पर रहे मिस्टर विवेक कुमार, ये कोई भी अंक पाने में सफल नहीं हुए। तो ये तीनों प्रतिभागी क्योंकि अंकों की दौड़ में पिछड़ गए, ये अगले सेमीफाइनल राउंड में पहुंचने में सफल नहीं हो पाए। जो सफल हुए उनके अंकों को मैं आपके सामने इन प्रतिभागियों के सामने रखता हूं। इसमें इस क्रम में जो 3 प्रतिभागी अंक पाने में सफल हुए, इस दौड़ में सबसे आगे रहे हमारे प्रतिभागी नंबर 2 मिस्टर मनीष, जिन्होंने 100 अंक पाने में सफलता पाई। इसके बाद प्रतिभागी मिस्टर अब्दुल रहमान, ये 40 अंक पाने में सफल हुए। और अंत में तीसरे प्रतिभागी मिस्टर जितेंद्र, जो 30 अंक पाने में सफल हुए। तो अपने बुद्धि चातुर्य के अनुसार, अपनी विद्वता के अनुसार ये तीनों प्रतिभागी अपने अंकों के बलबूते पर नेक्स्ट राउंड, दैट इज आवर सेमीफाइनल राउंड, and they have succeeded to achieve that second round. So once again they are all to be greeted here. क्योंकि ये 3 प्रतिभागी जो नंबर की अंकों की दौड़ में पिछड़ गए, लेकिन क्योंकि उन्होंने सराहनीय प्रयास किए, सभी प्रश्नों के उत्तर में आगे बढ़ चढ़कर भाग लिया, मैं उनका भी मनोबल बढ़ाने के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं मिस्टर मनोज गहलोत को, जो हमारे अभी तक चैनल के रिहड़ के रिपोर्टर हैं। कृपया मंच पर आएं। और मैं इसी क्रम में आग्रह करता हूं इल्मा आफ्ताब से, कृपया मंच पर आएं और इल्मा को एक चिन्ह देकर, एक पुरस्कार देकर उसका उत्साहवर्धन करें। मिस्टर मनोज गहलोत। मेरा आग्रह है अभी तक चैनल के एमडी मिस्टर शरद राजवंशी जी से, कृपया हमारे मनोज गहलोत जी को इस प्रति चिन्ह देकर उनका धन्यवाद ज्ञापित करें। शरद जी। धन्यवाद शरद जी। मेरा आग्रह है प्रतिभागी सामा परवीन से, कृपया मंच पर आएं। और हमारे बीच में एक उच्च कोटि के व्यक्ति पधारे हुए हैं, श्री अवनीश शर्मा जी, जो इस समय प्रिंसिपल हैं पार्कर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के। मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि इसको एक पुरस्कार देकर इसका उत्साहवर्धन करें हमारे प्रतिभागी सामा का। क्योंकि अवनीश जी शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं और ये जो प्रतियोगिता है इसमें शिक्षा का एक अहम रोल है, एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरा उनसे विशेष निवेदन है कि इन प्रतिभागियों को अपने आशीर्वचन से लाभान्वित करें। श्री अवनीश शर्मा जी। The whole team of Sanskriti Production House, including Abhitak News Channel, all the distinguished guests, including parents and guardians, and my dear participants. First of all, I would like to pay my heartiest thanks to MD of this Sanskriti production, Sharad Rajvanshi ji, for inviting me here today on this auspicious occasion as a guest. Thank you so much. Now, as far as participants are concerned, 3 have moved to semi-final round, that is next round.
3 will have to move back their home. But participants, you need not worry about that. See, as it was informed by Chamoli sir also, losing or winning, it's a part of game. Participation, it is rather more important. At least you have come here. How many students filled that form of Genius Con? But out of those, only a handful of them are sitting over here. It shows your courage. It shows your genius. All the best for next events also. Thank you so much. पुनः मेरा निवेदन है एमडी मिस्टर अरविंद सिंह जी से कि हमारे गेस्ट मिस्टर अवनीश शर्मा जी को स्मृति चिन्ह देकर धन्यवाद ज्ञापित करें। शरण जी। इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगा प्रतिभागी नंबर 6 मिस्टर विवेक से कृपया मंच पर आएं और पुनः मेरा निवेदन है एमडी मिस्टर शरद राजवंशी जी से कि उसको स्मृति चिन्ह देकर उसका उत्साहवर्धन करें ताकि वो नेक्स्ट राउंड में आगे बढ़े। धन्यवाद। इस मंच पर विराजमान मंच की शोभा बढ़ाने वाले हमारे ये सभी प्रतिभागी, इसके लिए ये चैनल अभी तक इनका हृदय से आभार व्यक्त करता है कि सबने इस कार्यक्रम में भाग लेकर मंच की शोभा बढ़ाई। उनमें से जिन्होंने अगले चरण में पहुंचने में सफलता पाई, उनके भविष्य की सुखद कामना। वो इसी प्रकार से अपनी विद्वता का परिचय देते हुए आगे और राउंड्स में बढ़ें, सेमीफाइनल, एंड देन दे शुड रीच द फाइनल स्टेज एंड दे कम अलोंग विद द फ्लाइंग कलर्स। ऐसी मेरी इस मंच की ओर से हृदय से कामना है। और शेष जो प्रतिभागी आज उस दौड़ में पहुंचने में सफल नहीं हो पाए, वह भी निराश न हो और अधिक जोश के साथ और अधिक प्रयास और अपने ज्ञान के साथ भविष्य में जो आपका जीनियस कॉन सीजन 4 आएगा उसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले और जो कुछ इसमें कमी रह गई इस राउंड में, नेक्स्ट राउंड में अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए आगे बढ़े। यहाँ इस अवसर पर पधारे हुए जितने भी अभिभावकगण हैं और जो हमारे यहाँ पर मेहमान हैं, हमारे अतिथिगण हैं, मैं इस मंच की ओर से उन सभी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उन्होंने यहाँ पधार कर इन बच्चों का उत्साहवर्धन किया और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। धन्यवाद।